हाँ, जय सच्चिदानंद। अम्मे केवा पुण्यशाली, अम्मे केवा पुण्यशाली, भगवाननी भूमिका आदे है मैं निहारी। भगवाननी भूमिका आदे है मैं निहारी। अम्मे केवा भाग्यशाली, अम्मे केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी छावी भारी। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी छावी भारी। अम्मे केवा पुण्यशाली, अम्मे केवा पुण्यशाली, आगम स्वरूप थाऊ એ માર્ગ મુક્તિનો છે। आगम स्वरूप थाऊ એ માર્ગ મુક્તિનો છે। શક્તાત્મા ક્ષમા આસ્વાદ શ્રુતિનો છે। आस्वाद श्रुतिनो छे। આસ્વાદ શ્રુતિનો છે। आस्वाद श्रुतिनो छे। વંધાને વચકાશો वादाने वचकाशौ अज्ञान मान्यताओ એને ઉડાવી। अज्ञान मान्यताओ एने दीदी उड़ावी। અમે કેવા પુણ્યશાળી, अमे केवा पुण्यशाली, અમે કેવા ભાગ્યશાળી। अमे केवा भाग्यशाली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रिया जय सच्चिदानंद। हे दादा, भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવું સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। ઓરલ હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવા કે પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। વિનય हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ના કરવાની પરમ શક્તિ આપો। અનુજ હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। પ્રિયા હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા
ન બોલાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા દંતેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો. વિનય हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કિયા જાય ન કરવાયા જાય તે કર્તા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્ભર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. દક્ષ ટોરલ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. અનુજ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવધારી જીવાત્માનું પ્રત્યક્ષત્વ પરોક્ષ જીવિત અથવા મૃત્યુ પામેનાનું કોઈનું કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. દક્ષ जय सच्चिदानंद। हे राधा मुझे जगत कल्याण करवानु दिव्य द्वंद्वादी परम शक्ति आपो. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે ઓકે વિધિ દીદી કયું પદ મને મોકલાવજો ને કયું કરવાનું છે અને हाँ મને તો બોલાવીએ. हाँ जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય नमो अरिहंताणम નમો અરિહંતાણમ नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણમ नमो आयरियाणम નમો આયરિયાણમ नमो उवज्जायाणम નમો વજ્જાયાણમ नमो लोए सौव साहुणम નમો લોયે સવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો વચન મુકારો सौव पावकपणाशणो સૌભાગણાસણો मंगलाणं च सौवेसिं મંગળમ ચ સર્વે पढ़वं हवै मंगलम् હવે મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કરિશ્મા जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं पढ़ाई में और समझने में जो मुझे पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव माता की सेवा में ही करो जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों से जीवन व्यवहार में मॉरल से प्यार बनी रहूंगी ताकि मेरा शरीर मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट भक्ति का मालिक बन पाऊं। हे राधा भगवान मैंने मेरे माँ के अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनके मुख से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। अनुज હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન
हम हैं आपके बच्चे, हमें आपके बच्चे बच्चे दिल के हैं सच्चे, है सच्चे फिर भी है कच्चे, फिर भी भी है है कच्चे। कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे खाएंगे अच्छे अच्छे अनुज भैया। जय सच्चिदानंद। ओके ओके तोरल हाँ और स्टडी प्रेयर क्यों लास्ट पर हाँ स्टडी प्रेयर वो सब हुई है या नहीं दादा भगवान हाँ सेपरेशन हे- प्रेयर हिंदी हाँ हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप लोगों तो अलग है हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप रियल तो रिलेटिव है हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट तो टेम्पररी श्रेया जय सच्चिदानंद हे शुद्धात्मा दादा भगवान તમે જુદા છો શ્રેયા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો શ્રેયા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો શ્રેયા ટેમ્પરરી છે જય સચ્ચિદાનંદ दक्ष जय सच्चिदानंद। दादा सेपरेशन प्रेयर हाँ दादा क्या बोलो तुम सेपरेशन प्रेयर बोलो हिंदी में हिंदी भगवान अपना को दक्ष लगे हे श्री रत्न भगवान हे श्री रत्न भगवान परमानेंट टेम्पररी हे श्री रत्न भगवान रियल क्रिएटिव है। ओके तोरल हेल्थ हाँ हेल्थ हाँ स्वस्थ शारीरिक हमें शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक बौद्धिक भावनात्मक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है हे दादा भगवान मुझे इस सेवन में शक्ति दो श्रेया સ્વસ્થ શરીર આપણને શારીરિક માનસિક મનોવૈજ્ઞાનિક બૌદ્ધિક ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે હે દાદા ભગવાન મને આ બાબતે શક્તિ આપો किनाय कड़ी मेहनत ईमानदारी और निश्चितता से अज्ञान करने से उत्कृष्ट गुण देगा, अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगा। हे दादा भगवान मुझे इस समझने शक्ति आपो। विधि दीदी आता है आपको हाँ थोड़ा थोड़ा आता है तो श्रेया અભ્યાસમાં સખત મહેનત પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે મારા લક્ષ્યો સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે હે દાદા ભગવાન મને આ બાબતે શક્તિ આપો किनाय नित्य और ईमानदारी से सभी सत्साधन करने से मेरा मन मजबूत होगा, मेरा चित्त केंद्रित रहकर मेरे 3 लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होगा, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा व्यवहार सुधार होगा, दादा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जगत कल्याण में निमित्त बनूंगी। हे दादा भगवान मुझे इस समय में शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद तो ओके आपका श्रेया तोरल एसएस कैसा रहा बहुत अच्छा बहुत अच्छे 100% नहीं कितना 80% 80 श्रेया हाँ कितना 80 ओके सब लिखो आप जो प्रोजेक्शन करता है बाद में रिजल्ट हम कंपेयर करेंगे और मोनिका आपका इंग्लिश कैसा रहा अच्छा था आज। और खुशी आपका क्या था आज मैं भूल गया हिंदी ओ सॉरी यस हिंदी कैसा रहा अच्छा था आज। ओके तो कल किसके है एग्जाम आई नो तो श्रेया तोरल नहीं है खुशी आपका कौन सा है कल कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर का ओ कंप्यूटर साइंस तो इजी होता है ओके ओके वेरी गुड तो अभी तो 2 दिन छुट्टी थी सैटरडे संडे मंडे
तो श्रेया, आपका नोट्स में संतोष काका ने क्या बोला था? नॉट गुड हैबिट्स क्या होता है? हाँ, जैसे चिरंजीव, जो बैड हैबिट होता है वो हमारे मन को कन्विंस नहीं करता है और हमको कुछ के सामने ले जाता है। और जब भी हम हमारा मूड ऑफ होता है तब हम ज्यादा देर मोबाइल और हमारे फ्रेंड्स के पास ही जाते हैं। और गुड क्वालिटी का मतलब ये है कि हम हमारे मम्मी पापा को मदद करें और सभी के साथ रहे। और जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तभी हमारे मिस्टेक्स ज्यादा होते हैं। हाँ। ओह वेरी गुड। आप नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो बहुत आपको काम आएगा। ये नोट्स आपका लिख के वेकेशन में सब नोट्स तैयार करो और बाद में हम हिरन काका को बोलेगा ये बुक पब्लिश करने का है। ओके श्रेया हाँ। और खुशी, दोनों का नोट्स बहुत अच्छा होता है। ओके वेरी गुड। एक तमिल में हिरन काका एक तमिल में निकालेगा। है खुशी, चलेगा? हाँ, ओके वेरी गुड। तो ओके, तो ये 2 दिन और आज का कैसे रहा? गुड क्वालिटीज और नॉट गुड क्वालिटीज में देखो, हम बैड क्वालिटी नहीं बोलेगा, हम नॉट गुड क्वालिटी बोलेगा। गुड क्वालिटी और नॉट गुड क्वालिटी में क्या रहा 3 दिन? श्रेया? जैसे चिनानंद, गुड क्वालिटी में मैंने मेरे मम्मी को मदद किया था और जो एग्जाम थी उसकी अच्छी प्रिपरेशन की थी। और बैड क्वालिटी ये है बैड कि नहीं, नॉट गुड क्वालिटी, नॉट गुड क्वालिटी। बोलो नॉट गुड क्वालिटी बोलो। हाँ, नॉट गुड क्वालिटी ये है कि लास्ट में जब मंडे को सोशल के एग्जाम थी तो संडे को मुझको आलस आ गई थी सोशल करने के लिए। वो तो बैड क्वालिटी नहीं होता, आपने इतना पढ़ा है तो वो मम्मी बहुत डांटी देता तो मम्मी को बोलो दादा को फोन करे। ओके वो आलस नहीं, आपने इतना प्रिपरेशन किया तो रिलैक्सिंग ही होना मांगता है। तो आलस आते हैं तो पद गा जाने, पद आपका फेवरेट। लास्ट फ्राइडे मम्मी ने बोला गाया था ना गाना। ओके हाँ। खुशी, खुशी हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी गुड क्वालिटी ये थी कि मैंने सच साधन किए थे, 2 दिन में कंप्लीट किए थे और सिर्फ चरण विधि रह गई थी मेरी। बैड नॉट गुड क्वालिटी में चरण विधि रह गई थी और मुझे बहुत कंटाला आ रहा था 2 दिन में हिंदी करने के लिए। आज ही मैंने किया था स्कूल जाने से पहले। ओके क्या ग्रेड देगा आपका मुझे तीनों दिन का कंबाइन? सी। जी। और छोटी का? छोटी का बी। बड़ी का? बड़ी का भी ये। ओह क्या बात है, वेरी गुड। ओके करिश्मा, गुड और नॉट गुड क्वालिटीज में क्या धमाल किया आपने वीकेंड में? नॉट गुड क्वालिटीज में मैंने दीदी को गाली बोली थी और दीदी को मैंने परेशान किया था जब वो पढ़ाई कर रही थी स्कूल से आते वक्त। किसको परेशान किया? दीदी को। कौन सी दीदी? आप कितने? दोनों दोनों को। क्यों, क्या किया था आपने? जब आज मेरी दोस्त की आज जन्मदिन थी तो मैं घर आकर चॉकलेट खाई तो मेरी दीदी मुझसे छीन कर खा गई, इसलिए मुझे गुस्सा आया और उसे मैंने बहुत गाली बोली। और खुशी दीदी आज सो रही थी, उसके वक्त हम आराम कर रही थी, उसके वक्त हम दोनों कार्ड्स खेल रहे थे। उसके बाद दीदी और पापा आ रहे थे। दरवाजा बंद था, पापा बेल बजा रहे थे। दीदी ने मुझे कहा था कि उठकर आड़ो दरवाजा खोलो, तो मैंने नहीं खोला था और दीदी ने मुझे गाली बोल दी।
फिर मोनिका, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरी गुड क्वालिटी ये है कि आज मैंने मम्मी की बर्तन धोने में हेल्प की थी और साथ ही आज मैंने मैथ्स भी किया था। और नॉट गुड क्वालिटीज में आज मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ 20 मिनट्स मैंने बात की थी यूं ही। और क्या कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस की बात की थी? नहीं, तो नहीं, आज मैं स्कूल से अकेले आ रही थी, तो फ्रेंड्स के साथ आई थी आज पहली बार, तो इसलिए किसकी मैं बातें किसी पिटाई और बुराई की? हाँ, मैं बुराई की थी मेरी दोस्त। तो कलम नंबर 8 को ब्रेक किया था। वेळेवर प्रतिक्रम करना पाहिजे तोरल। हाँ, आज गुड क्वालिटी थी, मैंने प्रिपेयर अच्छे से किया था, मम्मी को हेल्प किया था। और जो नॉट अ गुड क्वालिटी था कि मैंने एक्सरसाइज नहीं की। मम्मी को क्या हेल्प किया था? खाना बनाया था? नहीं, मम्मी को वेसल्स अरेंज करने में हेल्प की। वो तो क्या 2 मिनट का काम होता है? कितना मिनट का काम होता है? 5 मिनट। 3 दिन में 5 मिनट मम्मी को हेल्प किया। हाँ। हाँ, वो कैसा हिसाब है? और मम्मी ने आपको कितना कितना घंटा हेल्प किया? मम्मा ने 2 मिनट, तो हम्म? हाफ ऑफ इट। इतना बहुत ध्यान है? 5 घंटा 3 दिन में? तो हाँ। गिनो गिनो। हाँ, ये कैसा इक्वेशन? आप मैथ 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 का स्टूडेंट है आप? हाँ, हाँ। 2+2 = 4 होता है ना? तो आप तो कौन सा मैथ करते हैं? 1+50 = 1, ऐसा मैथ किया आपने तो। दक्ष, जय सच्चिदानंद। मेरी गुड क्वालिटी ये थी कि अनम्यूट करो, वापिस बोलो। मैंने जय सच्चिदानंद सैटरडे मैंने मैंने एक दिन मैंने भिंडी की सब्जी खुद से बनाई थी। बर्थडे किसका बर्थडे? वो हिरन को भेजा था? नहीं, क्यों? कैसे कैसा सेल्फिश मैं कैसे होता है आप लोग सब? ओके, और बोलो नॉट गुड क्वालिटीज में क्या किया दक्ष? मैंने मम्मी की हेल्प भी करी थी और मैंने इन डेज में मैंने मम्मी को बहुत कम बात और आपने एक्स्ट्रा स्टडीज कितना किया? मैंने मम्मी को 3 बार ही कठोर भाषा बोल दी थी और मैंने डेली स्टडी भी करी थी। कितना घंटा किया 3 दिन में एक्स्ट्रा स्टडी? 15 मिनट। तो 15 मिनट में और सी में से बी कैसा आएगा? 15 में हो सकता है? सी ग्रेड में से बी ग्रेड हो सकता है? जरा नहीं। सोचो खुशी छोटी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा पॉजिटिव ये था कि आज मेरा गुड क्वालिटीज में ये था कि मैंने आज मम्मी को हेल्प की थी पोछा देखो, लगाने में हेल्प हेल्प ऐसे और नहीं बोलो, प्लेटफॉर्म क्या साफ किया किया था था। और कितना मिनट हेल्प किया था, वो सब बोलो। हाँ, मैंने कहा मैंने पोछा लगाया था और प्लेटफॉर्म साफ किया था। वो कितना टाइम लगता है उसको बोलो ना, कितना मिनट्स आपने मम्मी को दिया? प्लेटफॉर्म साफ करने में मैंने 10 मिनट्स किया था और पोछा लगाने में 20 मिनट्स। 20 दिन में सारा घर खत्म हो जाता है? हाँ, हो जाता है।
हम इंडिया में पोता मारता तो हमारा तो आधा घंटा तो बोल तो भी कम पड़ता था। आप लोग क्या सुपर वुमन है? नहीं तो कैसे ऐसे लगा के मम्मी हो गया? नहीं ओके आरुष, 3 महीने हाँ, आपने कितना, 3 दिन में कितना कमाई की है आपने? नहीं किया, हाँ? नहीं किया। क्या करते वेकेशन में, क्या करते हैं आप? हाँ क्या किया 3 दिनों में? टीवी, मूवीज? एक देखी कितना घंटा? रात 1 हाँ 1 घंटा। 1 घंटा। और दूसरा 72 आवर्स में क्या किया आपने? एक पूरा दिन तो सत्संग में रहा। ओ हम लपकामन गए थे। हाँ वो कमानी तो बहुत बहुत कमानी होती है उसकी। उधर हिरन काका ने आपको ढोल बजाने दिया था? हाँ हाँ हाँ। ओके। और अब पियानो लेके गया था? हाँ अब पियानो सीखते हैं ना? पियानो। हाँ अब पियानो लेके गया था? नहीं, तो कविराज का कब का सॉन्ग कब सीखेंगे आप, प्ले करेंगे हमें हमके लिए? मैं रेडी कर रही हूँ। ओके जल्दी से जल्दी करो, हमको ये सुनने का है। ओके जामनगर वाला, जामनगर वाला है नहीं? दरअसल किधर के आप? हाँ जामनगर। तो भाई हमने बोला जामनगर वाला तो बोला हमने। हाँ आप तो एक्चुअली आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 3 दिन आपने रिपोर्ट भेजा, वेरी गुड। हाँ आप सिंसियर सीरियस बन गया है ऐसे रहने का। ओके अब बोलो क्या कमानी किया ये 3 दिन में और कितना पैसा घुमाया? दरअसल जल्दी जल्दी बोलो। अब फिर से बोलेंगे। 3 दिन में कितना गुड क्वालिटीज में कितना पैसा कमाया और नॉट गुड क्वालिटीज में कितना पैसा घटा गया? गुड क्वालिटीज में मैंने मम्मी की हेल्प की थी, और 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 दूसरी गुड क्वालिटी में मम्मी ने मुझे बाहर से कुछ लाने के लिए बोला था, इसलिए वो भी मैं लेके आ गया था। और नॉट ये गुड क्वालिटी मम्मी ने मुझे पढ़ने जाने के लिए बोला था, तो मैंने बोला कि बाद में चला जाऊंगा। और फिर तो मंथन आपने कितना पैसा कमाया? मंथन अभी भाई से मैं भाई को रोज बोलो बोलो। मैं रोज गुस्सा करता हूँ। आज मैंने उस पर कंट्रोल किया था। मम्मी पर गुस्सा करता हूँ और मैं अपने मम्मी पर और पापा पर गुस्सा करता हूँ। आज मैंने उस पर कंट्रोल किया था। ओके मम्मी अच्छी नहीं लगती है? नहीं लगती है। मम्मी अच्छी लगती है विधि दीदी, मम्मी अच्छी लगती है तो आप गुस्से करते हैं मम्मी पे? नहीं। तो गुस्सा क्यों होता है मम्मी पे? और बाद में हिरन काका की से बात करो। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। गुड क्वालिटीज में मैंने संडे को मम्मी को पोछा लगाने में हेल्प की थी, लेकिन मुझे 1 घंटा लगा था पोछा लगाने में। और सैटरडे संडे को हम लपकामन गए थे। और नॉट गुड क्वालिटीज में तो कुछ नहीं है। और जब लपका में जाते तो बोला कि हम करोड़ करोड़ रुपया लेके आए ऐसा बोलो। ओके हाँ और फुल डे गया, हाफ डे गया तो हाफ करोड़, फुल डे गया तो करोड़। ओके ऐसे हाँ ऐसे रिपोर्ट देने का।
ओके, हिरण काका आपने सब सुना, आप थोड़ी बातें करो। ये अपने गुड क्वालिटी की जो बात करते हैं, तो गुड क्वालिटी में कैसा है कि अपन कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने को सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ये जो मैंने काम किया उससे मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और उससे ज्यादा अपन घर का कुछ काम करते हैं तो अपने को क्या लगता है कि हमने मम्मी का काम किया, पापा का काम किया, लेकिन मम्मी का काम किया, पापा का काम किया, लेकिन सही में मम्मी के पापा का काम किया, वो अपने को इस तरह से दिखता है कि हमने उनका किया। सही में अपन देखे तो मम्मी की बात करें तो मम्मी आपका कितना काम करती होगी दिन में? बहुत सारा। और कितना वो याद रखते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं याद रखते हैं। और अपने को अपन थोड़ा सा भी काम करते हैं तो अपने को क्या लगता है कि मैंने उनका काम किया। सही में उनका काम नहीं किया है। ये घर है तो मम्मी का ही घर है कि अपना भी घर है? अपना भी है। ये रसोई में जो सब काम करते अपना हैं, भी घर है। हाँ, रसोई में सब काम करते हैं तो मम्मी की जिम्मेदारी है कि अपनी भी जिम्मेदारी है? अपनी भी है। अपनी भी है। अपन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। लेकिन खाना खाते हैं, लेकिन खाना बनाने में हेल्प करते हो कितना करते हो? 10-20%। थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं तो अपने को क्या लगता है कि मैंने मम्मी का काम किया, थोड़ा सा हेल्प करके। ओ हिरण काका, हम्म। खाना बनाएगा तो मम्मी ही खाएगा, वो हेल्प किया ना तो उन लोग को तो खाने का ही नहीं होता। तो यहाँ ये समझने का है कि मम्मी के पापा है, अपन काम करते हैं, अपनों ने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ इसके साथ ध्यान ये भी रखने का है कि ये मम्मी का काम नहीं है, ये मेरा काम है, मेरी फर्ज है। मेरे को ये कोई भी मैं काम करूंगा तो उस तरह से मेरा जो मन है वो उस तरह से तैयार होगा। कोई भी काम होगा तो कभी कभी मम्मी नहीं है और या तो मम्मी की तबीयत सही नहीं है और खाना बनाने का आया कि घर का काम करने का आया, तो अगर कभी भी खाना नहीं बनाया है कि कभी भी घर का काम किया नहीं है तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम्स होंगे ना। तो किसको प्रॉब्लम्स होंगे? अपने को ही प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये जो अपन काम करते हैं तो किसी के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लिए करते हैं। इतना ध्यान रखने का है। ये अच्छा करते हैं उसके लिए तो मैं सहमत हूँ कि ये अच्छा करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखने का है कि ये जो काम है ये मम्मी का काम है ऐसा नहीं है, ये पापा का काम है ऐसा नहीं है। जो भी काम है, देखो आप पापा अपने लिए कितना काम करते हैं और उसको कितना याद रखते होंगे? नहीं रखते। मम्मी अपना कितना काम करते हैं और कितना याद रखते हैं? नहीं रखते। मम्मी अपना आपका काम करते हैं, उसमें कभी पूछो तो वो मैंने ये विधि के खुशी का काम किया ऐसा बोलेंगे कि मैंने मेरा काम किया बोलेंगे? नहीं, मैंने मेरा काम किया ऐसा ही बोला। मेरा काम किया बोलेंगे। और अपन करेंगे कुछ काम तो क्या कहेंगे कि मम्मी का काम किया, पापा का काम किया। समझ में आया? तो ये करते हैं तो उसको उनका काम करते हैं इस तरह से नहीं करने का है। ये मेरी फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है और मेरे को करना ही चाहिए, इस तरह से करने का है। क्यों? तो कि इस तरह से आप करोगे तो आपका ऐसा मन बनेगा कि आपको कहीं पे भी किसी के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। क्योंकि आप घर का काम करते हो तो आपको दूसरे जो भी दिक्कत वाले
जो भी संजोग है उसमें आपका ध्यान नहीं जाएगा और किसी के साथ इस तरह से खाली टाइम पास करने की बात बनती है, वो सब नहीं होगा। अपन मोबाइल में टाइम पास करते हैं, ये सब नहीं होगा। टीवी में टाइम पास करते हैं, वो नहीं होगा। और उसके बदले अपन जो घर का काम करेंगे तो अपना जो शरीर है वो भी बहुत अच्छा तैयार होगा, अपना मन भी है वो बहुत अच्छा तैयार होगा। तो अपना शरीर है, मन है, अपना वाणी का व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो अपना जो काम घर में करते हैं वो अपना ही काम होने वाला है, अपने लिए ही अच्छा है और अपना ही काम करते हैं, इस तरह से करने का है, ये ध्यान रखने का है। दूसरी बात, अभी कोई लड़के ने बताया, जामनगर वाला जो लड़का है उसने क्या बताया कि मम्मी और पापा के साथ गुस्सा कर देता हूँ लेकिन अभी कंट्रोल कर रहा हूँ। किसने बताया ये? मैंने मंथन। हाँ, मंथन नाम है ना तुम्हारा? हाँ। हाँ, तो क्या ये आप कंट्रोल कैसे कर पाओगे? कैसे? अभी तो समझो कि आपने बोलने का बंद रखा लेकिन दिमाग तो चलने का बंद हो जाएगा। किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो अपने वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है, लेकिन मन से तो गुस्सा होता है कि नहीं होता है? तो मन से गुस्सा कब नहीं होगा? सबसे पहले गुस्सा कहाँ आएगा? पहले दिमाग पे आएगा, फिर वाणी पे आएगा, फिर अपने शरीर से कुछ लड़ना झगड़ने का व्यवहार होगा कि नहीं? लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? मन से होगा। तो ये कंट्रोल अपने को इस तरह से नहीं करने का है। कंट्रोल कैसे करने का है? तो कि अपने समझ के साथ करने का है। तो कि समझ के साथ मतलब क्या कि जो मम्मी या पापा है वो कोई भी अपने को बात करते हैं, कुछ भी कहते हैं, अपने को गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा क्यों आता है कि मम्मी और पापा कोई भी बात करते हैं तो क्यों वो कहते हैं वो अपने को पता नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो अपने को पता नहीं है। क्यों मुझे ऐसा समझा रहे हैं वो अपने को पता नहीं है। आपके पापा और मम्मी आपको कुछ बात करते होंगे तो आपके अहित के लिए बात करते होंगे। मंथन? हाँ। अहित के लिए बात करते होंगे कि आपके हित के लिए बात करते होंगे? आपके फायदे के लिए बात करेंगे कि आपको नुकसान हुए उसके लिए बात करेंगे? फायदे के लिए। फायदे के लिए। तो जो अपने फायदे के लिए बात करता है उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो लेकिन फायदे के लिए बात करते हो, कैसा पता चलेगा कि आपको जो उनकी बात कोई समझ में नहीं आती है? कोई बात मम्मी ने बता दी कि कोई बात पापा ने बता दी, वो समझ में नहीं आती है तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन उनको पूछने का कि मम्मी आप जो कहते हो मुझे समझ में नहीं आता है, आप समझाओ, तो समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? समझेंगे। समझाएंगे। फिर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको गुस्सा होगा नहीं होगा। फिर ये गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि गुस्सा अपने आप बंद हो जाएगा? कंट्रोल करना बंद हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई तो फिर गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा कि गुस्सा अपने आप बंद हो जाएगा? अपने आप बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने गुस्से को साइड पे रख के जो सामने वाले पे जहाँ पे गुस्सा आता है उसकी बात समझने की कोशिश की और आपको उनकी बात समझ में आ गई तो गुस्सा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये बात समझने की। मंथन समझ में आया? हाँ। हाँ। जय सच्चिदानंद। ओके, समझ सबको आ गया? हाँ। ओके, कल किसकी एग्जाम है? ओके, कुछ ही एग्जाम प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे सर्वे शासन रक्षक देवी देवताओं,
आप हमें आशीर्वाद दो ताकि हम अपने मंजिल पे सक्सेसफुली पहुंच जाए और हम अपने स्वभाव से, अपने आचरण से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न दे, सबको सुख दे। ऐसी आप हमारे ऊपर कृपा बरसाओ। हम अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए हर एक संजोग में पॉजिटिव रहे और हमारे अंदर एक भी नेगेटिव तत्व ना रहे, ऐसी आप हमारे पर आशीर्वाद बरसाओ। हमको दादा भगवान की तरह पॉजिटिव जीवन जीने की आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाओ। हे दादा भगवान, हमने साल भर में स्कूल में अच्छे से ध्यान दिया है, होमवर्क भी किया है, परीक्षा के लिए उचित पढ़ाई भी की है और रिवीजन के लिए तैयारी भी की है। तो हमारी परीक्षा में नए साधन पूरे विश्वास से अच्छे से पेपर लिखेंगे। हे दादा भगवान, आप हमारे साथ रहकर हमसे अच्छे से पेपर लिखवाना। हमारे माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ आपके आशीर्वाद और सभी आप्त पुत्र की ओर से, सभी महात्मा के ओर से आशीर्वाद दें। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Okay, Kushi Didi, very all the best tomorrow. Okay. Okay, Jai Sachidanand.